Hello students, welcome to my channel Class 10th Math by Manas sir. I had discussed the important concept of the arithmetic progression. Today is our third lecture. I will discuss the remaining part, and I think all of you have solved the questions related to the exercise 5A. 5A exercise चल रही थी हम लोगों की 5A, तो आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस किए होंगे. सो आई एम डिस्कसिंग फ्यू क्वेश्चंस टुडे एंड आई थिंक ये एक्सरसाइज जो 5A है हम लोगों की, इसमें टोटल 48 क्वेश्चंस हैं. तो किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन शेयर इन द कमेंट बॉक्स, सो वी कैन डिस्कस दैट. अभी के लिए क्या करना है कि कुछ क्वेश्चंस जो कि थोड़े से न्यू कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ. आप लोग भी अपने लेवल पे लगाएंगे. देखो बेटा, मैथ के बारे में कहा जाता है इट इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस ओनली. ओके, मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स इफ यू विल डू, यू आर एबल टू स्कोर good marks in your subject, in this subject, specifically for the mathematics. And whatever the chances of the means कभी भी कोई क्वेश्चन आप लगा रहे हैं और गलत हो जाए, उसके चांसेस धीरे धीरे क्या होता है, जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे धीरे धीरे वो एलिमिनेट होते जाएंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16th, that question I am discussing, question number 16th from your exercise 5A from RS Agrawal. Question number 16th I am discussing. See what the question is. If the 10th term of an AP is 52, if the 10th term of AP is 52, if the 10th term of AP is 52 and 17th term is 20 more than its 13th term, and condition is given 17th term is equal to 30, क्या लिखा हुआ है, just a minute, 20 more than its 13th term. तो 13th term, ये 17th term इस 13th term से 20 ज्यादा है. दिस लिखा हुआ है in the question, it is written 17th term is 20 more than the 13th term. Okay, तो इसका मतलब है अगर आप इन दोनों को इक्वल करना चाह रहे हैं, है ना, तो ये ज्यादा है 20, तो इसमें अगर हम 20 ऐड कर दे, देन यू विल गेट दीज टू टर्म्स विल बिकम इक्वल. ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको. ओके, मींस इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज you must read the question carefully, and according to the condition you need to develop the equations. Okay, तो दिया हुआ है 10th term of an AP is 52, 17th term is 20 more than the 13th term. So all the information of the question is written these 2 points. पूरी इंफॉर्मेशन इसी क्वेश्चन की इन 2 पॉइंट्स में लिखी हुई है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एपी तो पता नहीं है, सिर्फ टर्म दिया गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, यू विल सपोज लेट A be the first term and D be the common difference, okay, of AP. ठीक है, let A be the first term and D be the common difference of AP. then क्या होगा, 10th term T10 is equals to A plus 10 minus 1 D, and which is equals to 52. Okay, it means A plus 9D is equals to 52. A plus 9D is equals to 52. Okay, this one is equation number 2. Suppose, ठीक है, A plus 90 is equals to 52. यहां तक क्लियर हो रहा होगा. कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया हो, the same way you will solve the numerical. Now next term is given, 17th term is equals to 13th plus 20. Okay, so you can write this from this relationship. You can write in this way. You can write 17th means A plus 17 minus 1D is equals to A plus
13th minus 1d plus 20. Okay, ठीक है. So you can write a plus 16d is equals to a plus, this will remain 12d plus 20. Okay, from this expression you can say these terms are equal and same sign for both sides. This will be cancel out. Shift this 12d to this side, left side, so that will become negative. 16d minus 12d is equals to 20. It means 4d is equals to 20. It means d is equals to 5. It means d is equals to 5. यहां तक देख लीजिए. कोई भी टर्म ऐसा हो जो समझ में ना आया हो, आप देख लीजिए. आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन अकॉर्डिंग. First of all, read the question carefully. In the question it is written 10th term of an AP is 452, 17th term is 20 more than the 13th term. So first of all, whatever the value is given, that is 10th term of an AP is 52. So first of all, let A and A be the first term of the AP and D is the common difference. Then 10th term you can write the formula Tn equals to A plus n minus 1 D is equals to 52. You can write that A plus 9D is equals to 52. That is the one equation. Now from the given condition, as 17th term is 20 more than the 13th term, you will write the formula, general formula for the 17th term, 13th term and put in the equation number 1. You will get the value of the common difference D. Now when you are able to get the value of the common difference D, easily you can calculate the first term. Okay, because you will put this value D in equation number 2. Okay, देखो बेटा एक चीज हमेशा याद रखें कि whatever the method, whatever the way I am writing here, when you are writing answer in your examination, it matters that the way which you are explaining. Means when you are putting this value of D in equation number 2, then you will write a statement that putting the value of D in equation number 2. In this way you will explain, because that exam is not a competitive exam. In competitive exams there is objective questions. You can directly tick the whatever the correct option. The method is not checked, but in the board exams, whatever the step, whatever the process you are following, that is also evaluated. Okay, तो यहाँ पे देखिए, putting this value, so you will get A plus 9 into 5 is equals to 52. Means A plus 45 is equals to 52. It means A is equals to 52 minus 45, that is 7. Okay, so that is 7. Means the value of A is 7. Okay, the value of A is 7. यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक समझ में आ रही होंगी चीजें. The value of A is 7. Okay, so if the A is known, means first term is known, common difference is known, you can write the AP. You can write the AP. Okay, first term is 7. First term is 7. Next term will be 7 plus 5, that is 12. Next term will be 12 plus 5, that is 17. Next term will be 17 plus 5, that is 22. In this way you can write. So 7, 12, 17, 22. ठीक है? So in this way 7, 12, 17, 22, that will be the final answer. This will be the final answer. Okay, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया. तो दिस वन इज द 16th क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th. नेक्स्ट क्वेश्चन 19th डिस्कस करते हैं. बाकी सिंपल है. फाइंड द 17th इज द मिडिल टर्म. यू कैन फाइंड इजीली. इफ इट इज ऑड नंबर, देन मींस n को फाइंड करेंगे. अगर वो ऑड नंबर है, देन n plus 1/2th इज द मिडिल टर्म. Okay, if it is even number, then n/2th and n/2 plus 1th, दो टर्म निकल के आएंगे मिडिल के. ओके, तो वो हम जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आप कर लेंगे. कंडीशन 19th देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. Okay, in the 19th question it is written, find the sum of two middlemost term of an AP. तो आपको क्या निकालना है? देखिए, जो निकालना हो, पहले जो गिवन है वो लिखिए. गिवन AP is given, that is -4/3, -1,
माइनस 2/3 dot 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 it is up to 4 to the 1/3. Okay, 4 is to 1/3. Okay, ठीक है. तो इन दिस यू हैव टू फाइंड आउट, क्या निकालना है आपको? फाइंड द टू मिडिल मोस्ट टर्म, टू मिडिल मोस्ट टर्म. तो सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट एन. कितने टर्म होंगे इस सीरीज में, इस एपी में गिवन है आपको कि ये एपी है. ओके, तो ये आपको बताना है कि टोटल, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कितने टोटल टर्म होंगे पहले हम वो निकाल लेते हैं. मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन, दैट वी विल कैलकुलेट. और उस बेसिस पे, ऑड इवन बेसिस पे फिर हम निकालेंगे कि मिडिल टर्म की वैल्यू क्या होगी. ओके, तो आइए देखते हैं. सबसे पहले सी इन दिस फर्स्ट टर्म a is minus 4/3. Common difference d is, I am not writing again and again first term and common difference, I am just writing symbol. Okay, so common difference d is, इसको इसमें से माइनस करेंगे, मीन्स -1 minus 4/3. Okay, means -1 plus 4/3. Okay, take the LCM, that is 3. You will get -3 plus 4, that is 1/3. 1/3. That will be the common difference. Okay, d is equals to, you will get the value of d, that is the 1/3. Okay, यहां तक क्लियर है. तो अगर आपको a पता है, d पता है, मैं कह रहा हूं इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, n you have to calculate. Then you can write nth term is given, nth term क्योंकि 1 2 3 up to n. Okay, so nth term means tn, that is given 3 4 12 and 1 13/3. Okay, nth term is given, so you can write the formula tn equals to a plus n minus 1 d. Okay, so tn, that is given 13/3 is equals to a, that is minus 4/3 plus n minus 1. n is, we have to find out number of terms, कितने टर्म है, and d is given 1/3. ओके, तो अब इसमें आगे क्या करेंगे, बस सिंपल कैलकुलेशन करते जाएंगे. यहां पे इसको इधर शिफ्ट कर देंगे. 13/3 प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू n minus 1/3. ओके, डिनोमिनेटर इज सेम, सो न्यूमरेटर विल बी एडेड. मींस 13 and 4, that is 17/3 is equals to n minus 1/3. 3 will be cancelled out. You will get the value of n, that is 17 plus 1, that is 18. ओके, तो इस सीरीज में कितने टर्म होंगे टोटल, वैल्यू ऑफ n क्या होगी वो आपने निकाल लिया. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट विल बी 18. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट विल बी 18. इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 18 होंगे. ठीक है, देखिए आगे मिडिल मोस्ट टर्म कैसे निकालना है आपको. तो मैंने बताया था when the number is even, then n/2 is the middle term. Okay, तो middle term that will be n/2th term. Okay, means 18/2, that is 9. means 9th term अगर आप निकाल ले जाओ तो you will get the answer. Okay, means अगर आप 9th term निकाल ले जाओ तो आपका आंसर आ जाएगा. इसमें पूछा क्या गया, एक मिनट देख लो. फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म. सम निकालना है आपको. टू मिडिल मोस्ट टर्म, एक टर्म तो ये हो गया. ठीक है, 2 पूछा है तो इसके नेक्स्ट वाला भी, नेक्स्ट वाला निकालेंगे. एंड नेक्स्ट 2, ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट मिडिल टर्म. ओके, नेक्स्ट मिडिल टर्म के जस्ट बाद वाला 2 मिडिल मोस्ट पूछा है, उसने मिडिल मोस्ट नहीं, लगभग बीच में, तो ये तो मिडिल टर्म हो गया क्योंकि ये इवन है, तो 18/2. नेक्स्ट टर्म इसका क्या होगा, 18/2 प्लस 1, दैट इज 10th टर्म. और आपसे कहा गया है कि इन दोनों का सम निकालिए. मींस you have to find out, means we should calculate 9th term of this AP plus 10th term. ये दो मिडिल मोस्ट टर्म हो गए, इन दोनों का सम निकालना है. यहां तक क्लियर हो रहा होगा सबको. 9th term and next term, that is 10th term.
तो 9th टर्म का फॉर्मूला लिखिए, a प्लस 9 माइनस 1d प्लस 10th टर्म a प्लस 10 माइनस 1d। ओके, तो फर्स्ट टर्म लिख दीजिए यहां पे -4/3 प्लस 8, d is 1/3, we have calculated the value of d is 1/3, means into 1/3 plus -4/3 in the bracket plus 9 into 1/3। ओके, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। अब इसको सिर्फ अरेंज करना है आपको एंड यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर, ओनली यू हैव टू अरेंज द थिंग्स। तो देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखिए दिख रहा होगा आपको, यहां पे देखिए दैट विल बिकम -4/3, लेट मी सी इज इट विजिबल, हाँ ओके इट इज विजिबल, ओके, प्लस 8/3 माइनस प्लस माइनस माइनस 4/3 प्लस 9/3। ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे, इससे कैंसिल हो रहा है लेकिन कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमको सबको ऐड करना है और ये डिफरेंस उसमें है, फ्रैक्शन में है, तो 3 इज सेम, टेक द कॉमन, दैट इज मींस नाउ 3 इज द एलसीएम। अब ऊपर क्या आएगा, एज साइन आ जाएंगे सारे टर्म, प्लस 8 माइनस 4 प्लस 9। ओके, तो देखिए 8 और 8 ये कैंसिल हो गया, ये निगेटिव का 8 होगा, ये पॉजिटिव 8 होगा, तो दैट इज 9/3, 3 3 is 9, दैट इज 3। ओके, तो सम ऑफ 9th टर्म ये निकाल लिया आपने, जो फाइंड आउट करना था, एंड 10th टर्म, टू मिडिल मोस्ट टर्म का सम क्या होगा, 3 होगा। ओके, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 19th। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार देख लीजिए फिर से और खुद से सॉल्व जरूर करिएगा क्वेश्चन को, देन इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो वी शुड proceed for the next question. Next question is 21, 22. That questions are very similar and very simple you can say, and based on the just on the formula, सिर्फ सीधे सीधे फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो इसमें ऐसा कुछ टफ नहीं है, तो ये सारे सीधे 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 कॉन्सेप्ट हैं। हम क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 27। देखो बेटा, मन लगा के खूब पढ़ाई करिए, जब तक आपके कॉलेज नहीं ओपन हो रहे हैं, स्कूल नहीं ओपन हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करिए, और अपने ये जो टाइम ड्यूरेशन मिला है इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए अपनी मैथ को, अपनी साइंस को, जो अदर सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए। ओके, तो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 27। लेट्स प्रोसीड फॉर दैट। इट इज रिटन द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। देखिए थोड़ा सा ये मुझे लग रहा था कि आप लोग इसमें फंस सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। जो लिखा हो क्वेश्चन में बस उसको लिख लो सबसे पहले, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। ओके, एंड प्रूव दैट, प्रूव करना है, टू प्रूव करना है आपको, हाँ, दैट इट्स 25th टर्म इज ट्रिपल, its 25th term is triple its 11th term, मीन्स आपको प्रूफ करना है 25th टर्म होगा वो 3 टाइम होगा 11th टर्म, ये प्रूफ करेगा। कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। क्या है, सबसे पहले जो दिया है वैसा ही प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है आपको, 14th टर्म, फोर्थ टर्म इज 0। फोर्थ टर्म इज 0 मीन्स, अब सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन में, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। लेट A be the first term and D be the common difference, then you will write in this way, fourth term A plus n minus 1, that is 4 minus 1d is equals to 0. It is given. It means A plus 3d is equals to 0. It means A is equals to minus 3d. Okay, it means A is equals to minus 3d. Okay, now
अब जो प्रूफ करना है वो देख लीजिए, t25 दैट इज a प्लस 25 माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 11 मीन्स इसको आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 12 d सीधे सीधे लिख सकते हैं। सॉरी जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा इसी स्पेस को देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम a प्लस 11 माइनस 1 दैट इज 10 d और थर्ड क्या लिखा हुआ था, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 इंटू a प्लस 10 d। You will write the formula n minus 1 that is 11 minus 1 you can that will become 10. Okay, so a plus 24d is equals to 3a plus 10d. Okay, d you have calculated, a is equals to minus 3d, so put the value of a in this, that is minus 3d plus 24d is equals to 3 minus 3d plus 10d. ओके, तो देखिए यहां क्या बचेगा, दैट विल बी 21d हियर 3 और ये 10 था, 10 में ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या बचेगा 7d, दैट इज 21d इज इक्वल्स टू 7 3 7 जा 21d. सो द गिवन कंडीशन इज प्रूव्ड. ओके, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स and you will find the answer. Okay, you will get the answer, no doubt in that, but calculation mistake should not be there. Keep in mind, calculation mistake plays very important role because in the examination time is very limited, and if you are doing the wrong calculation that will result time wastage. Okay, so it means whatever the step you are writing in the previous lecture, I have told you whatever the step you are writing, just focus on that there should not be a single mistake. बहुत alertness के साथ लिखेंगे, ठीक है. तो 21d is equals to 21d means the given condition is verified, so the whatever the question that is proved. Okay, so this one is the question number 27. Okay, now proceed for the next question. That means question number 28. If the sixth term of an AP is 0, then show that its 33rd term is 3 times of its 15th term. I think 28 you can solve. Now 29th question is there. देखिए 29th देखते हैं हम लोग कैसे होगा. It is written the fourth term of an AP is 11. जो लिखा हो सबसे पहले वो लिखो. Fourth term of an AP is 11. Okay, and the sum of fifth and seventh term of this AP is 34. The sum of fifth and seventh term of this AP is 34. Okay, and क्या पूछा गया है, find its common difference. Find its common difference. Okay, ठीक है बेटा. तो देखिए फोर्थ टर्म इज गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले फोर्थ टर्म गिवन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि a प्लस 4 माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 11. इट मीन्स a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 11. ये आपकी एक इक्वेशन हो गई, ठीक है. अब इधर आइए, फिफ्थ टर्म प्लस सेवेंथ टर्म इज इक्वल्स टू 34 मीन्स you can write in this way, fifth term that is a plus 4d plus 17th term that is seventh term that is a plus 6d is equals to 34. I think I am writing directly 4d and here 7 की जगह पे हमने 6d ये जो लिखा है directly. I think all of you are able to understand why I have written these terms directly. और ये कहाँ से आ रहे हैं, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि 5 minus 1d, आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जाना चाहिए. तीसरा लेक्चर है ना, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए. तो यू कैन राइट इन दिस वे, दैट इज 2a प्लस ये ऐड हो गया ये और ये ऐड हो गया 10d इज इक्वल्स टू 34. 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 70. दो से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ठीक है. तो ये सारी चीजें मैथमेटिक्स में आपको आ रही होंगी. तो a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 70. नाउ अगर आप लीनियर इक्वेशन की तरीके से चाहें
तो इनको एक दूसरे के नीचे पुट करें, सबट्रैक्ट करें, कट हो जाएगा जो से इक्वल टर्म है और डी की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान के सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए a प्लस 3d इज इक्वल टू 11, ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये दोनों सेम टर्म है, निगेटिव, सबट्रैक्ट कर देंगे। जब भी सबट्रैक्ट करते हैं तो साइन बदल जाते हैं, ऑन सबट्रैक्शन तो साइन विल बी चेंज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा 2d और यहां से क्या बचेगा 6। ओके, यहां से अगर आप निकालोगे तो d विल बी 3। दैट इज वन मेथड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d। ओके, ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस पूछा गया था, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3 होगी, ये आंसर हो गया। अब इसको दूसरे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ a इनटू द सेकेंड इक्वेशन, वहां से आप फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू a की निकालें, दैट इज 11 माइनस 3d, यू कैन पुट इनटू द सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, उसमें आप a की जगह 11 माइनस 3d पुट कर दें, टर्म्स को अरेंज कर लें और वापस d की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो दैट मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सो आई थिंक दिस क्वेश्चन all of you are able to understand that question. Okay, so 30th question is there. 30th question is saying that the ninth term of an AP is minus 32, the sum of 11th and 13th term is 94, find the minus 94, find the common difference of the AP. So I think 30th question you all can do that. 31st question, 31st देखते हैं। 31st question क्या है, पढ़ते हैं पहले उसको, क्या है क्वेश्चन 31st। देखिए 31st question is 31st क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ एन AP whose 7th टर्म इज -1 एंड 16th टर्म इज 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। nth टर्म आपको फाइंड करना है। कौन सा टर्म फाइंड करना है? nth टर्म। ओके, हाँ, और जिसका 7th टर्म -1 है और 16th टर्म 17 है। तो जो दिया हो, सबसे पहले मैंने क्या कहा, जो दिया हो उसको लिख लेते हैं। मीन्स इट इज गिवन 7th टर्म, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 31st, 7th term is given, that 7th term is -1, okay, and just a minute, and 16th term is 17, ओके, 16th टर्म क्या है 17 है और निकालना है हमको nth टर्म, मींस tn की वैल्यू क्या होगी nth टर्म। ओके, मींस tn वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tn। तो सबसे पहले कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 7th टर्म पहले मान लेंगे, लेट a be the first term, d is the common difference, then 7th term can be written as a plus 6d is equals to -1, 16th term can be written as a plus 15d is equals to 17. Okay, so from this equation number, suppose this one is first, this one is second, theory लीनियर इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्शन पे साइन दोनों तरफ चेंज हो जाते हैं, ये सेम है तो इसको डिवाइड मींस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 6 चला गया तो कितना बचेगा 9d। ओके, और यहाँ कितना बचेगा, माइनस माइनस दैट इज माइनस का 18। ओके, सो फ्रॉम हियर d इज इक्वल्स टू 2, d की वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक है, अब अगर आपने d निकाल लिया तो इस वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो दैट विल बिकम a प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -1, दैट इज a प्लस 12 इज इक्वल्स टू -1, दैट इज a इज इक्वल्स टू -13। ओके, so you are able to calculate the value of a and the value of d. Okay, you are able to calculate the value of a and value of d. If you are able to calculate the value of a and d, you can calculate the nth term a plus n minus 1 d, that is a is -13 plus n minus 1 d is 2. Okay,
So you can write minus 13 plus 2n minus 2, that is 2n minus 15. This one will be the nth term, 2n minus 15. So nth term of the AP will be 2n minus 15. That is the answer for this question. Okay, I think some further new concept I had discussed. ठीक है, कुछ नए कॉन्सेप्ट जो इसमें बेस्ड थे वो मैंने बता दिए हैं आपको. और भी क्वेश्चंस हैं इसी तरीके से, सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे. उनमें कोई भी मीन्स इसका कॉन्सेप्ट, इसका जो रूट है, बेसिक है, वो ये है कि आप सबसे पहले वॉट एवर द कंडीशन इज गिवन, सबसे पहले जो भी कंडीशन आपको दी गई है, राइट दैट कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आफ्टर दैट अकॉर्डिंगली सॉल्व दैट. वॉट एवर द क्वेश्चन इज सेइंग, जो भी क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे सॉल्व करते जाइए. नो डिफिकल्टी यू विल बी देयर. ओके, एक चीज ध्यान रखिए कि नो कैलकुलेशन मिस्टेक्स विल बी देयर. ट्राई टू एलिमिनेट दैट. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर. In the coming lecture I will complete this exercise and we will proceed for the next concept. For the next concept means the exercise 5th B. And any confusion is there, any kind of difficulty in the lecture, you can share your views, your thoughts. तो ये जो मेरा चैनल है CBSE क्लास 10th मैथ बाय मानस सर, सब्सक्राइब करिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, so that more and more students can attend my classes. So thank you very much. Thank you very much for listening. Thank you.